Hi everyone, this is Nilay Kumar and you're watching Constitutional Law Series. We're going to discuss landmark case laws of Articles 15 and 16 and this is the second part of this video. Make sure you watch the first part of this video before watching part 2. So let's start. State of Kerala versus N.M. Thomas. Let's discuss the facts of the case first. The entire controversy dates back to the implementation of the Kerala State Subordinate Rules of 1958, specifically Rule 13A in line with Article 309 of the Indian Constitution. The mandated rule requires certain qualifications. Mandated rule requires certain qualifications and departmental tests for the appointments to various positions within Kerala State Subordinate Services. Subsequent to this rule, an amendment took place in January 1972. It introduced Rule 13.3AA to facilitate the individuals belonging to scheduled castes and scheduled tribes, hereinafter referred to as SC and ST, for 2 more years to clear such tests as mentioned under Rule 13A. Okay? Now this was the rule which was actually challenged. So the state of in this case it's a 7-judge bench judgment. The court held that the classification of classes of persons belonging to SC and ST is just and reasonable because of Articles 14, 15 and 16. ठीक है, granting exemption to such classes to ensure their equality of treatment and equal opportunities in terms of public employment is justified by the principle of right to equality embodied in Articles 14, 15 and 16. This is equality. यहाँ पे ओ गलती से आ गया है. The policy for giving an extension of 2 years to SCs and STs to clear a departmental test for promotion was held to be valid on this ground only. राइट आपको याद होगा जब हमने आर्टिकल 14 डिस्कस किया था तो मैंने वहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो एक रेस है और उसमें एक है इंसान जिसके 2 पैर हैं और एक इंसान है जिसके पैर नहीं है, वो व्हील चेयर पर रेस कर रहा है. तो अगर हम ऐसे दोनों लोगों को रेस कराएंगे एक ही रेस में दोनों को बोलेंगे compete करो एक दूसरे के अगेंस्ट, won't that be injustice? The same thing is happening here also. SCs and STs को they are not privileged like the unreserved category people when it comes to social factor and educational factors, right? Therefore 14 and 15 and 16 में right to equality का जो concept embodied है उसी के बेसिस पे स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस ने ये जो पॉलिसी थी 2 इयर्स का जो रिलैक्सेशन एससीज और एसटीज को दिया गया था डिपार्टमेंटल टेस्ट फॉर प्रमोशन के लिए उसको वैलिड होल्ड किया. द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स टू अवॉइड एनी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 और 16. People having similar circumstances shall receive equal treatment. This is like should be treated alike. Remember, this is what we studied in Article 14. Now we have Indira Sawhney versus Union of India, 1993 Supreme Court 9-judge bench judgment. This case is famously known as the Mandal Commission case. इसमें facts वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बस 2 स्लाइड का पूरे मैंने पॉइंटर्स डाल दिए हैं ताकि these pointers are self explanatory in nature. ठीक है, तो पहली चीज़ इन्होंने बोली आर्टिकल 64 इज़ अ इनेबलिंग प्रोविजन एंड नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16(1). Similarly, 15(4) is also an enabling provision and not an exception to 15(1). ये 2 बातें M.R. बालाजी के केस में बोली गई थी that 15(4) is an exception to 15(1) and 16(4) is an exception to 16(1). ये दोनों बातें M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बोली गई थी. ठीक है, सॉरी स्टेट ऑफ मैसूर उसमें बोली गई थी. ठीक है, तो कोर्ट ने इस पॉइंट पे M.R. बालाजी को ओवररूल किया है. M.R. Balaji in general hasn't been overruled. Only certain observations of M.R. Balaji has been overruled. Okay. Then special provisions under Article 16(4) includes reservations, concessions, exemptions, preferences, etc. So special provision का मतलब सिर्फ reservation नहीं है. Always remember जब भी आपसे पूछा जाए कि रिजर्वेशन टर्म का इस्तेमाल क्या आर्टिकल 15 और 16 में किया गया है तो आप बोलेंगे नहीं किया गया है बिकॉज स्पेशल प्रोविजन टर्म का यूज़ किया गया है और वो स्पेशल प्रोविजन काफ़ी वाइडर एम्बिट है इसका एज कम्पेयर टू द टर्म रिजर्वेशंस. देन वी हैव थर्ड पॉइंट, बैकवर्डनेस अंडर 16(4) इज मोस्टली सोशल इन नेचर whereas बैकवर्डनेस अंडर 15(4) एंड 15(5) इज बोथ सोशल एंड एजुकेशनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, अगर आप देखेंगे आर्टिकल 15(4) और 15(5) में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है, वेयर एज आर्टिकल 16(4) में सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है.
इसलिए दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है. इट्स नॉट लाइक दे बोथ द फ्रेजेस मीन द सेम. ठीक है. 15.4 15.5 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड का मतलब है वहां पे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस दोनों होनी चाहिए. दोनों में से सिर्फ कोई एक होगी तो आप स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकते. जब तक किसी क्लास ऑफ पीपल में या किसी क्लासेस ऑफ पीपल में दोनों सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस नहीं होगी तब तक आप उनको स्पेशल प्रोविजंस नहीं दे सकते. लेकिन 16.4 में क्या है, बैकवर्डनेस इज ओनली सोशल इन नेचर, राइट. Then a backward class can be determined solely on economic criteria. However, caste cannot be the sole or dominant criteria. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. Then backward classes can be further classified into backward and more backward classes. However, this rule does not apply to SCs and STs. ये भी MR बालाजी के केस में बोला गया था कि आप किसी भी क्लास को फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते. मतलब जैसे बैकवर्ड क्लासेस है तो उसको आप उनको बैकवर्ड एंड फर्दर मोर बैकवर्ड क्लासेस में नहीं कर सकते. या SCBCs है तो उनको आप फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते. SCs STs को क्लासीफाई नहीं कर सकते. बट यहाँ पे इंदिरा सोनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको कर सकते हो फर्दर क्लासीफाई, लेकिन ये रूल SCs और STs पे अप्लाई नहीं होता है. तो कोर्ट हैज़ ओवर रूल्ड दिस पॉइंट ऑफ MR बालाजी एज वेल. Then we have reservation under Article 16(4) should not reach beyond 50% limit. अब MR बालाजी के केस में आपको याद होगा वहाँ पे 50% लिमिट डाली गई थी, राइट. इनफैक्ट टी देवदासन वाले केस में भी 50% लिमिट डाली गई थी. ठीक है, 50% लिमिट. लेकिन टी देवदासन में जो बात की गई थी, MR बालाजी में नहीं की गई थी, आई एम सॉरी, टी देवदासन वाले केस में जो बात की गई थी वो 50% स्ट्रिक्ट लिमिट था. इंदिरा सोनी में उसको स्ट्रिक्ट नहीं रखा है, उसमें एक्सेप्शन डाल दिया है दैट इट कैन एक्सीड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, इट विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. 16(4) refers to adequate representation and not proportional representation. Adequate representation और proportional representation में बेसिकली मतलब क्या है. proportional representation होता है, मान लो कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि यूपीएससी में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उसमें कितने हमारे मेजॉरिटेरियन लेट्स से कितने SCs हैं और कितने STs हैं, हम इन टोटल देख रहे हैं. ठीक है, तो उसमें हमें दिखेगा कि नहीं एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन ये आप गलत देख रहे हो. आपको ये देखना पड़ेगा जितने क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स, है ना. डिफरेंट ग्रेड्स बनाए गए, ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, या फिर क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, इस तरह के क्या बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन कर रखे हैं हमने डिफरेंट सर्विसेज में. स्टेट सर्विसेज में है, सेंट्रल सर्विसेज में है. तो आपको हर ग्रेड पे, हर लेवल पे आपको चेक करना है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं. मान लो सिर्फ क्लर्क वाले लेवल पे सारे SCs एंड STs हैं और पता चल रहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऑफिसर जैसे लेवल पे SCs एंड STs एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया हर लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, हर लेवल ऑफ पोस्ट पे आपको चेक करना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं बैकवर्ड क्लासेस का. ठीक है. 16(4) डज नॉट अप्लाई टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, बट ये नलिफाई हो चुका है ड्यू टू द 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 विच नाउ प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SCs एंड STs ओनली. बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है, सिर्फ SCs एंड STs के लिए. ठीक है. फिर ये कैरी फॉरवर्ड रूल वाला जो केस हमने किया था उसमें बोला गया था दैट कैरी फॉरवर्ड रूल इज इन इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट इट्स ऑपरेशन शुड नॉट एक्सीड 50% सीलिंग लिमिट. This point of judgment have also been nullified by the 81st Constitution Amendment Act of 2000, which has inserted Article 16(4)(b), which provides for carry forwarding of vacancies in employment in an year to the subsequent year, irrespective of the fact that it may breach the 50% ceiling in that subsequent year. इसका एग्जाम्पल मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का अगर वैकेंसीज आप इस वाले में करंट ईयर में ऐड कर रहे हो और फिर आप जब काउंट कर रहे हो कि वो 50% से ऊपर जा रहा है तो उसको आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि वो फ्रेश सीट्स नहीं है. आपको सिर्फ 50% लिमिट आपको उस पर देखनी है जिस पे फ्रेश सीट्स और वैकेंसीज निकली है इस साल में. पिछले साल की जितनी भी वैकेंसीज होगी उनको ये 50% सीलिंग लिमिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उन सीट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, ऐसा आर्टिकल 16(4)(b) में लिखा हुआ है. ये जजमेंट पे नहीं है, 16(4)(b) में लिखा हुआ है.
कैरी फॉरवर्ड रूल के को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अलाउड है, लीगल है, लेकिन 50% सीलिंग लिमिट नहीं क्रॉस करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव I wanted to show you this image has been taken from a website called Supreme Court Observer. अब यहाँ देखो ये particularly 50% लिमिट वाले की बात कर रहा है. ओके वेट, लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक पे बात करते हैं. 50% लिमिट के रिजर्वेशंस की बात की जा रही है यहाँ पे. ठीक है. अब 50% रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ है और प्रेजेंटली क्या है ये देख लो आप. यहाँ पे एम.आर. बालाजी केस में बोला गया था, अ 5 जज बेंच हेल्ड दैट जनरली रिजर्वेशन शुड बी बिलो 50%. फिर 1963 में टी देवदासन आए जिसमें बोला गया 50% लिमिट टू डिसाइड द रिजर्वेशंस कुड नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर. कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. फिर स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस आया 1975 में, जहाँ पे 2 out of 5 जजेस रिमार्क्ड दैट 50% लिमिट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल बट वन ऑफ कॉशन. लेकिन ये माइनॉरिटी ने बोला था, मेजॉरिटी ने नहीं बोला था, इसलिए ये जजमेंट का पार्ट नहीं है. ठीक है. दिस इज ओबिटर डिक्टा एंड नॉट ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट. देन वी हैव केसी वसंत कुमार. ये केस हमने डिस्कस नहीं किया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस यहाँ पे जान लो दैट यहाँ पे एक जज ने बोला था दैट द 50% लिमिट डिड नॉट अप्लाई एंड द एफिशिएंसी वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मोर रिजर्वेशन. अनदर जज हेल्ड दैट द लिमिट डिड अप्लाई एंड 3 जजेस डिड नॉट कॉमेंट ऑन द लिमिट. तो एक ने कुछ बोला, एक ने बोला कि 50% लिमिट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा भी हो, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अफेक्ट होगी. एक ने बोला 5 में से एक ने बोला कि जो है सो नहीं अफेक्ट होगी एंड देयर शुड बी अ लिमिट टू इट, एंड 3 जजेस ने कुछ कमेंट ही नहीं किया. फिर फाइनली 1992 में इंदिरा सोनी का जजमेंट आया जिसमें 9 जजेस में से 3 जजेस ने बोला एब्सोल्यूट लिमिट होनी चाहिए, 5 ने बोला लिमिट होनी चाहिए विद एक्सेप्शन जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, और एक ने बोला कि कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ वाई हम जब ऑपरेटिव पार्ट अभी जब हमने पढ़ा था इंदिरा सोनी का पिछले स्लाइड में, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया सिर्फ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एक एक्सेप्शन डाला गया है इंदिरा सोनी के केस में 50% सीलिंग लिमिट में. Now we have Ajit Singh versus State of Punjab. This is a 3-judge bench. Reservation in promotion was introduced by the 77 Constitution Amendment Act. ठीक है, ये पता है आपको. Now this led to a situation where reserved category candidates were promoted over general class counterparts and they became their senior due to earlier promotion. ठीक है, तो अजीत सिंह के केस में कैचअप रूल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो मैं आपको आर्टिकल 16 के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा. If you want to understand what is catch-up rule and what is consequential seniority rule, please go back to my article 16 वाला video. It's lecture number 7 of this constitutional law series and please watch that. ठीक है, तो अजीत सिंह के केस में catch-up rule का concept introduce किया गया. The rule held that senior general candidates who were promoted after SC and ST candidates would regain their seniority over general candidates. ठीक है. फिर एम नागराज का केस आया. एम नागराज के केस में 16(4)A और 16(4)B को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था. द कोर्ट upheld the constitutional validity of both the articles and then also upheld the principles obtained in article 335 में बेसिकली 335 है, 55 नहीं. बात की जाती है कि आपको SC ST रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो अगर, तो आपको उधर इक्वालिटी का प्रिंसिपल भी देखना है, प्लस आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी भी बैलेंस करना है. तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा रिजर्वेशन में और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है. द कोर्ट फर्दर अपहेल्ड द प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन आर्टिकल 335 emphasizing the essential aspects of backwardness and inadequacy of participation, allowing governments to provide reservations while considering the overall efficiency of administrative governance. Basically balance create करना है आपको दोनों के बीच में, reservations और efficacy में. The court further reinforced several constitutional requirements including the 50% reservation limit, the concept of the creamy layer, the subclassification of OBCs and SCs and STs as established in Indira Sawhney case. सेम बातें बोली गई हैं. क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जो रिजर्व कैटेगरीज भी हैं उसमें भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का 2 सब क्लासिफिकेशन किया गया. जो क्रीमी लेयर है जिनको इकोनॉमिक बेसिस पे बोला जा रहा है और सोशल एंड एजुकेशनल बेसिस पे भी बोला जा रहा है, दे आर हाइयर सोशली, उनके स्टेटस हाइयर है एज कम्पेयर टू नॉन क्रीमी लेयर्स. तो क्रीमी लेयर्स को रिजर्वेशंस नहीं दी जाएगी इवन दो दे आर पार्ट ऑफ द OBCs, SCs एंड STs.
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एम नागराज के केस में क्या है, ये 3 फैक्टर टेस्ट। 3 फैक्टर टेस्ट क्या है, अगर 16(4)(a) में लिखा है ना दैट यू हैव टू डिटरमिन हु इज बैकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एडिक्वेट देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज आर, राइट। तो उसके लिए ये 3 फैक्टर्स आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। यू हैव टू फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट द बैकवर्डनेस ऑफ SCs एंड STs बाय क्वांटिफाइबल डेटा। रिमेंबर 16(4)(a) रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है एंड इट इज ओनली फॉर SCs एंड STs एंड नॉट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। So first you have to demonstrate backwardness of SCs and STs by quantifiable data, मतलब सर्वे करो। Then you have to prove inadequacy of representation. Of course ये आप अपने सर्विसेज में आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके कास्ट क्या हैं ये आपको अगर उस पर सर्वे आप कंडक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा और उसके बेसिस पे आप inadequacy शो कर सकते हो। एंड थर्ड यू हैव टू मेंटेन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज एज पर आर्टिकल 335। तो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द टू, राइट। इसका अगला केस है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इसमें क्या हुआ, इसमें एम नागराज को चैलेंज किया गया कि इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज इट वाज वायलेटिव ऑफ द डिसीजन इन इंदिरा सोनी केस, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नो वी आर नॉट गोइंग टू रिव्यू दिस केस एंड वी नॉट गोइंग टू रेफर दिस केस टू अ लार्जर बेंच, क्योंकि 5 जज का केस था तो उसको ऑब्वियसली 7 जज के लिए भेजना पड़ता, ठीक है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ की, ये जो पिछले केस में एम नागराज की केस में ये जो पहला फैक्टर था ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया जर्नैल सिंह में। क्यों स्ट्राइक डाउन किया, बिकॉज SCs और STs का बैकवर्डनेस दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला ना फर्स्ट पॉइंट में, डेमोन्स्ट्रेट बैकवर्डनेस ऑफ SCs एंड STs बाय क्वांटिफाइबल डेटा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। SCs एंड STs कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है दैट दे आर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली बैकवर्ड हैं उनको आपको क्वांटिफाइबल डेटा सर्वे कंडक्ट करके पैसा क्यों बर्बाद करना, एनर्जी और मैन पावर क्यों बर्बाद करना। तो ये 3 फैक्टर टेस्ट बेसिकली 2 फैक्टर टेस्ट बन गया आफ्टर जर्नैल सिंह वाला केस, ठीक है। एंड द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन extends to SCs and STs also, and hence the state cannot grant reservations and promotions to SCs and STs individuals who belong to the creamy layer of their community. Okay. Now last case we have EV Chennai versus State of Andhra Pradesh. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला that SCs and STs are a homogeneous group and therefore they cannot be further classified into creamy and non-creamy layer, ठीक है। फिर एक कोऑर्डिनेट बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की। देखो ये वाला केस भी 5 जज का है और ये जो अगला केस मैं आपको बता रहा हूँ वो भी 5 जज बेंच का है। यहाँ पे केस का नाम मिसिंग है, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। A 5 judge bench of the Supreme Court held otherwise and it held that sub classification of SCs and STs are allowed. Actually इस केस को आप नहीं भी जानोगे तो चलेगा, because the thing is EV चन्नैया अगर आपको पता है तो आपको ये पता होना चाहिए EV चन्नैया के केस में बोला जा रहा है सब क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है ऑफ SCs एंड STs इनटू क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर। एक और 5 जज बेंच का केस है जो बोल रहा है कि नहीं इट इज़ अलाउड, इट इज़ परमिसिबल। लेकिन दोनों डिसीजंस क्योंकि 5 जज बेंच के हैं तो कॉन्ट्राडिक्टिंग है एंड बोथ द डिसीजन हैव बीन रेफर टू अ लार्जर बेंच। ये इस बात को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये 2018 का जजमेंट है मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम करेक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट मोस्ट प्रोबेबली ये 2018 का जजमेंट है। यू कैन चेक इट ऑन योर ओन ऑन गूगल। ये जो दूसरे केस की बात हो रही है वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइम का है, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं इस बात को, बट अभी तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया है, राइट। तो मैंने आपको EV चेन्नई भी करा दिया, जर्नैल सिंह करा दिया, M नागराज करा दिया, अजीत सिंह करा दिया, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंदिरा सोनी करा दिया। सो वी हैव डन 1 2 3 4, we have done 4 judgments here, right? So no, we have done 5 judgments here, EV Chennai also. So we have done 5 judgments. So these are the only landmark cases of articles 15 and 16. अगर आप इतना भी याद करके चले जाते हो तो आपका क्लैट PG UGC नेट बहुत आराम से निकल जाएगा। आर्टिकल्स 15 और 16 आपका अब कंप्लीट है। So this is it for this video. Again I'm announcing one more thing, that I have started my WhatsApp channel as well. The link for the same is given below in the description box. Do join this channel. You'll get free notes there. You'll get proper study material. You'll also get important judgments and legal updates, right? Very frequently you'll be updated about the legal happenings around you and the important case laws. I will also be sharing important judgments, PDFs, which will be annotated by me
and important parts will be highlighted so that it becomes easier for you to read the judgments as well, because I cannot make a judgment video on every judgment, right? You know, I have been running another series of important case laws for CLAT PG 2025 and UGC NET 2024, but it is impossible to make a video on every judgment. So what I'm going to do is I'm going to give you some annotated judgments PDFs on that WhatsApp channel so that you can study rest of the cases on your own, and I will cover only the very important case laws in the video series, right? So this is it. I will see you in the next video.